Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing grammar, and in your grammar we are doing unit 5 of your English grammar book, Superb English Grammar book, unit 5, that is use of is, am, are. Children, I have started this unit a few days back, and I have explained you when to use is, am, are. What is, am, are. Is, am, are called helping verb. This I have explained, and where to use is, where to use am, and where to use are. And I have also started exercise of the unit, and we completed first exercise and some part of the second exercise. Children, let's have a quick revision of what we did in the previous videos. Use of is, am, are. Is, am, are, as I told you, is, am, are, these three verbs are called helping verbs. इसको कहा जाता है helping verbs. They are not main verbs. Main verbs are action verbs, doing verbs. They are main verbs, and these are called helping verbs. These verbs are used in present tense or present time. These verbs are used in present time. जो चीज़ है, जो चीज़ अभी भी है, that is present time, that is present tense. Okay? Is a helping verb, and it is used in present tense for singular noun or pronoun. Okay? Is used in present tense for singular noun or pronoun. Are is used in present tense for plural nouns or pronouns. कोई भी plural noun या pronoun है तो हम are use करते हैं if we are talking in terms of present time, जो चीज़ अभी भी present है. Am is also used in present time, but it is always used with capital I. उसको हमेशा हम capital I के साथ use करते हैं. I is always used with capital I. So first of all, is used with singular noun or pronouns in present tense. Are used with plural nouns or pronouns in present tense. Okay? Am is always used with capital I in present tense. So this is all about it, and I have explained you in detail in the previous video. Previous video में मैंने ये सारा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, फिर आप ये वाला वीडियो कंटिन्यू करेंगे. Now let's continue the exercise that we left in the previous video. पिछले वीडियो में हमने जो छोड़ा था एक्सरसाइज, उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. We have done exercise number 1. Exercise 1 हम कर चुके हैं. Exercise 2 जो है, which is given on page number 23, उसमें हम फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं पिछले वीडियो में. So go through that in the by watching the previous video. Today we are going to start the third one.
जो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है दैट वी आर गोइंग टू डू, which is question number 2. Let me write the question at least. क्या था question? Complete the sentences by filling the blanks with is am are. Okay, this was the question. This is the question, and first and second we have done in the previous video. Third is meet my family. Meet my family. This dash my granny. Dash my granny. She dash 60 years old. 60 years old. Dash, sorry, he blank my grandfather. Grandfather. My father blank a businessman. My mother blank a teacher. These dash my siblings. I dash the eldest one. We dash to see you. We are glad. We dash glad to see you. Now we have to fill in these blanks with is, am, are. चलिए, मीट माई फैमिली मतलब मेरी फैमिली से मिलिए. मेरी फैमिली से मिलिए. द स्पीकर इज सेइंग मीट माई फैमिली. आप मेरी फैमिली से मिलिए. अब क्या बता रहा है वो अपनी फैमिली में? दिस डैश माई ग्रैनी. ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर को ग्रैनी भी बोला जाता है. तो कितनी ग्रैनी है? एक ही ग्रैनी है ना. दादी एक ही है, चाहे नानी या दादी को ग्रैनी बोलते हैं, जिसे हम ग्रैंड मदर भी कहते हैं. तो यहाँ पे एक ही ग्रैनी है. सिंगल नाउन, सिंगल कॉमन नाउन. तो क्या करेंगे? सिंगल होता है तो क्या यूज़ करते हैं? इज़, है ना. अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो कौन सा हेल्पिंग होगा? हेल्पिंग वर्ब इज़. सो दिस इज़ माई ग्रैनी. Now here we are using she. She is a pronoun and she pronoun is used for single female.
है ना, सिंगुलर फीमेल में यूज़ होता है शी, तो ये सिंगल हुआ, सिंगल प्रोनाउन हुआ, तो सिंगल प्रोनाउन होगा तो भी इज़। शी इज़ 60 years old, वो 60 years की हैं, शी इज़ 60 years old। नेक्स्ट, he blank my grandfather। now again you can see here he क्या है, प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन है मतलब ये सिर्फ एक मेल जेंडर के लिए यूज़ होता है, सिंगल मेल के लिए यूज़ होता है ही प्रोनाउन, तो ही इज़ ऑल्सो अ सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ भी हम लिखेंगे इज़, ही इज़ माई ग्रैंडफादर। माई फादर, फादर इज़ अ नाउन, इट इज़ अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है तो अगेन वी विल यूज़ इज़। माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। माई मदर, अगेन मदर, मदर इज़ अ सिंगुलर नाउन, मदर भी सिंगुलर नाउन है, एक ही है ना मदर, मदर्स तो नहीं लिखा है, मदर है तो लिखेंगे इज़। माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी मम्मी क्या है, माई मदर इज़ अ टीचर। ओके, अभी तक हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया, इज़, क्योंकि सिंगल, या तो हमें सिंगुलर नाउन मिल रहा था या तो फिर सिंगुलर प्रोनाउन था। अब दीज कब यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा होता है, व्हेन वी हैव मोर देन वन। तो दीज डैश माई सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, जो हमारे भाई बहन होते हैं उनको हम कहते हैं सिबलिंग। तो सिबलिंग्स है मतलब एक से ज़्यादा। जब एक से ज़्यादा नाउन होता है तो क्या यूज़ करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, आर। दीज आर माई सिबलिंग्स। आई के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एम, है ना, आई के साथ तो हमेशा एम यूज़ करते हैं। सो आई एम द एल्डेस्ट वन, आई एम द एल्डेस्ट वन। वी डैश ग्लैड टू सी यू। नाउ हियर वी हैव अनदर प्रोनाउन दैट इज़ वी। हमारे पास प्रोनाउन कौन सा है, वी है ना। वी इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन। वी कब यूज़ करते हैं, जब स्पीकर होता है और स्पीकर के साथ कोई और भी होता है, कोई और मतलब एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पीकर एंड समवन एल्स, स्पीकर और साथ में कोई और, वो कोई और एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो वी आर ग्लैड टू सी यू, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीट माई फैमिली, मेरे परिवार से मिलिए, मेरे फैमिली से मिलिए। ये मेरी ग्रैनी हैं, ठीक है, ये मेरी ग्रैनी है, वो 60 years old हैं, शी इज़ 60 years old। ही इज़ माई ग्रैंडफादर, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, मेरे फादर बिजनेसमैन हैं। माई मदर इज़ अ टीचर, मेरी मम्मी टीचर है। दीज आर माई सिबलिंग्स, ये मेरे भाई बहन सिबलिंग्स हैं। आई एम द एल्डेस्ट वन, मैं सबसे बड़ा हूँ। वी आर ग्लैड टू सी यू, और हम मतलब आपको देखकर, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला। यू कैन नोट डाउन, आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं या समझ के आप खुद से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, टीचर्स आर हियर टू हेल्प यू आउट, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप एक्सरसाइज को खुद भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। Now children, the next exercise is fun time. क्या है? Fun time. Let's visit a zoo. क्या लिखा हुआ है इसमें? Let's visit a
zoo. Sent its live telecast, its live telecast to your cousin. By completing this report. नाउ इस एक्टिविटी में क्या है, लेट्स विज़िट अ ज़ू. चलो एक ज़ू में विज़िट करते हैं, एक ज़ू में जाते हैं. फिर क्या करेंगे, सेंड इट्स लाइव टेलीकास्ट. लाइव टेलीकास्ट क्या होता है, मतलब वहाँ जाके वहीं से, जहाँ ज़ू में से ही हम उसको टेलीकास्ट करना, मतलब दिखाना, चाहे मोबाइल से, कैमरा से, जैसे भी दिखाएंगे, अपने कज़न को दिखाना है. ठीक है, लाइव टेलीकास्ट करना है, मतलब ज़ू में जाना है, कैमरा यूज़ करना है और अपने जो कज़न है उसको वहीं से ज़ू को दिखाना है और साथ में ज़ू के बारे में बताते भी जाना है. दिखाते हुए वहाँ से रिपोर्टिंग करनी है, वहाँ उसको हमें बताना है, अपने कज़न को बताना है. वहाँ पे जो जो चीज़ आप देख रहे हैं उसके बारे में आप बताते जाएंगे. लाइव मतलब उसी समय से, मतलब कोई रिकॉर्डेड नहीं दिखाना है. जब हम हैं प्रेजेंट में तभी हम दिखा रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग करके आ रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है. मतलब वहीं ज़ू में है और ज़ू से ही कज़न को दिखा रहे हैं, सामने के सामने. हम भी ज़ू में हैं और कज़न को हम ज़ू से वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, साथ में हम उसको बता भी रहे हैं. दैट इज़ लाइव टेलीकास्ट. तो आई हैव टू राइट द पैराग्राफ हियर. लेट मी ट्राई टू राइट द पैराग्राफ. जितना मैं लिख सकती हूँ एक बार में उतना मैं ट्राई करती हूँ लिखने का. आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके. इट ब्लैंक अ ज़ू. वी ब्लैंक हियर टू सी वेरियस birds and animals. Wow! This giraffe, giraffe blank amazing, sorry, amazing. Its neck blank so long. Look at the zebra. It blank running fast. These parakeets, parakeets. These parakeets dash awesome. Their feathers blank brightly colored. brightly, brightly, colored. Okay. Oh, the tiger blank roaring, roaring. I
blank a bit afraid, AFRAID, but it blank in a cage. Crocodiles blank basking in the sun. Then they dash not even moving. They dash not even moving. Monkeys blank climbing the trees. They blank totally restless. My mom यहाँ डाल देते हैं blank clicking the pictures. Clicking the pictures, PICTURES. I blank sending you pictures via WhatsApp. Okay, इतना ही आ रहा है तो I'll adjust camera so that the rest of the thing can come. And the last line is I dash enjoying it. I dash okay. So let's complete it. इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है. Let's visit a zoo. Send its live telecast to your cousin by completing this report that I have told you. Now what you have to do? Read it. It dash a zoo. It कब यूज़ करते हैं? सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर जिसका हमें जेंडर नहीं पता होता है. इट सिंगुलर के लिए यूज़ होता है तो हम क्या लिखेंगे? इज. इट इज़ अ zoo. It is a zoo. Then let me come this side. Okay. We dash here to see various birds and animals. Okay. We blank here to see various birds and animals. We is a plural pronoun. आपको मैंने बताया था we जो होता है plural pronoun होता है. ये एक से ज़्यादा जब लोग होते हैं इंक्लूडिंग द स्पीकर और उसके साथ समवन एल्स, दैट समवन एल्स कैन बी वन और मोर देन वन. जो बोल रहा है स्पीकर और उसके साथ कोई एक और या एक से ज़्यादा और, तो हो जाता है वी. उस ऐसे टाइम में हम ये प्लूरल ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो वी क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन है तो हम यूज़ करेंगे आर. We are here to see various birds and animals. We are here to see various birds and animals. Wow! This giraffe. अब यहाँ पे सिर्फ एक जिराफ है, सिंगल नाउन है, ठीक है. एक ही जिराफ है, क्योंकि सिंगल है तो हम लिखेंगे is. Wow! This giraffe is amazing. This giraffe is amazing.
इट्स नेक, अब उसके नेक की बात हो रही है, किसके नेक की? जिराफ की। तो इट्स, यहाँ भी एक ही जिराफ की बात हो रही है, इसलिए इट्स नेक, और नेक्स नहीं लिखा है, सिर्फ नेक लिखा है, मतलब एक गर्दन की बात हो रही है। तो इज, इट्स नेक इज सो लॉन्ग, उसकी गर्दन लंबी सी है ना। वाओ, दिस जिराफ इज़ अमेजिंग, इट्स नेक इज़ सो लॉन्ग। आपने देखा है ना जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है, उसकी वजह से वो इतना टॉल दिखता है, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग नेक। लुक एट द ज़ीब्रा, अब ज़ीब्रा की बात है यार ये। लुक एट द ज़ीब्रा, अब यहाँ एक ही ज़ीब्रा है, ठीक है, इसलिए इट इज़, वन नाउन है ना, सिंगल है ना, तो इज। लुक एट द ज़ीब्रा, इट इज रनिंग फास्ट, इट इज रनिंग फास्ट। ज़ीब्रा एक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, देयर, अच्छा देयर नहीं, सॉरी दीज है, दीज पैराकीट्स जो होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े ना पैरट के जैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, दे लुक लाइक कलरफुल पैरट्स, ठीक है। सो दीज पैराकीट्स, जो पैरट जैसे जो बर्ड्स हैं वो, तो यहाँ पे पैराकीट्स है, प्लूरल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? आर, दीज पैराकीट्स आर ऑसम, दीज पैराकीट्स आर ऑसम। देयर फेदर्स, अब उनके पंखों की बात हो रही है, पर फेदर्स की, यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, तो इसलिए क्या यूज़ करेंगे? आर। देयर फेदर्स आर ब्राइटली कलर्ड, उनके जो पंख हैं वो कैसे हैं? ब्राइटली कलर्ड हैं। देयर विंग्स, देयर फेदर्स आर ब्राइटली कलर्ड। नेक्स्ट, ओह द टाइगर, अगेन वन टाइगर, सिंगुलर, एक टाइगर है, तो क्या लिखेंगे? इज। ओह द टाइगर इज रोरिंग, टाइगर जो है वो दहाड़ रहा है, ओह द टाइगर इज रोरिंग। देन आई के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? आई के साथ हमेशा एम। आई एम अ बिट अफ्रेड, आई एम अ बिट अफ्रेड, मतलब मुझे डर लग रहा है। बट इट, अगेन इट है, इट इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन, इट जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, एक नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, या जिसका हमें जेंडर नहीं पता होता है। अब वो टाइगर का जेंडर नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल है, इसलिए इट इज़ इन अ केज, वो कहाँ पर है? इट इज़ इन अ केज, वो एक पिंजरे में बंद है। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स यहाँ पर एक से ज़्यादा है, क्रोकोडाइल्स है, एक से ज़्यादा क्रोकोडाइल हैं, तो क्या बोलेंगे? क्रोकोडाइल्स आर बास्किंग इन द सन। बास्किंग का मतलब होता है धूप सेकना, मतलब सनलाइट में लेटना, सनलाइट में इस तरह से लेटना कि हमारी पूरी बॉडी को सनलाइट मिल रही है। तो आपने देखा होगा क्रोकोडाइल्स, अगर आपने किसी ज़ू में देखा होगा तो वो लोग हमेशा ना पानी के बाहर, पानी के पास ही वो ऐसे धूप में पड़े रहते हैं, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं, एकदम स्टैचू की तरह पड़े रहते हैं। सो दे आर बास्किंग इन द सन, मतलब धूप की, वो धूप सेकना जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो धूप सेक रहे हैं। क्रोकोडाइल्स आर बास्किंग इन द सन। दे, अब दे क्या है? दे इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन, दे भी क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, एक से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे एक से ज़्यादा मेल हो या एक से ज़्यादा फीमेल हो, तो हमें ये यूज़ करते हैं। तो दे आर, दे के साथ आर यूज़ करेंगे। दे आर नॉट इवन मूविंग, वो हिल भी नहीं रहे हैं, दे आर नॉट इवन मूविंग। आपने देखा होगा क्रोकोडाइल्स हिलते नहीं है जब वो धूप में ऐसे लेटे रहते हैं, तो लेकिन उनके पास को जाएगा तो फट से ऐसे हिलेंगे, मतलब दे कैन बी डेंजरस, यस दे कैन अटैक कर सकते हैं, इसलिए उनके पास नहीं जाना चाहिए। मंकीज़, अगेन मंकी नहीं है, मंकीज़ है, एक से ज़्यादा मंकी,
तो जब प्लूरल होता है तो क्या यूज़ करते हैं? आर। मंकीज़ आर क्लाइंबिंग, मंकीज़ आर क्लाइंबिंग, मंकीज़ क्लाइंब कर रहे हैं। क्या क्लाइंब कर रहे हैं? द ट्रीज़, मंकीज़ आर क्लाइंबिंग द ट्रीज़। अगेन वी हैव दे है ना, दे इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन, सो वी विल राइट आर। दे आर टोटली रेस्टलेस, मतलब टिक के नहीं बैठते ना। आपने देखा होगा बंदर हमेशा उछलते कूदते रहते हैं, तो जो हमेशा उछलता कूदता रहता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रेस्टलेस। दे आर रेस्टलेस, मतलब बिल्कुल उदंड मचाए हुए हैं। माई मॉम इज़, मम्मी तो एक है तो इज़, माई मॉम इज़ क्लिकिंग द पिक्चर्स। आई एम, क्योंकि आई के साथ तो एम ही आएगा। आई एम सेंडिंग यू पिक्चर्स वाया व्हाट्सअप एंड आई एम enjoying it, I am enjoying it। चलिए इसको पूरा देख लेते हैं। It is a zoo, we are here to see various birds and animals। Wow, this giraffe is amazing, its neck is so long। Look at the zebra, it is running fast। These parakeets are awesome, their feathers are brightly colored। Oh, the tiger is roaring, I'm a bit afraid, but it is in a cage। Crocodiles are basking in the sun, they are not even moving। Monkeys are climbing the trees, they are totally restless। My mom is clicking the pictures, I'm sending you pictures via WhatsApp, I'm enjoying it। So ये है आपका fun time, ये हमारा फन टाइम वाला एक्टिविटी है दैट वी हैव, फन टाइम एक्सरसाइज जो है दैट वी हैव कंप्लीटेड। आई होप ये आपको समझ में आए। यू कैन सी दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जब आप खुद से करें, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हियर। ओके, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। अगले वीडियो में मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करवाना चाहूँगी इज़ एम आर का। आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, ओके, फॉर प्रैक्टिस एज वेल एज होमवर्क। कुछ प्रैक्टिस कराऊंगी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और कुछ आपको मैं होमवर्क दूंगी। सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।